الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، غلو فی الدین لوگوں میں گھر کر چکا ہے اور شخص پرستی لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ اسی طرح سے تبلیغی احباب کی ایک آڈیو موصول ہوئی ہے۔ آڈیو سننے سے پہلے احکر کا تبصرہ سنیں۔ غلو پسندی سنگین جرم ہے، کیونکہ یہی رجحان عصمت توحید کو تار تار کرنے والے ناقابل معافی جرم یعنی شرک کی تمہید ہے۔ آج کل شیطان اور شیاطین یعنی اس کے پیروکار مختلف محاذوں پر عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کو مسخ کرنے، امت میں افتراق و انتشار پھیلانے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نت نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں۔ ان تمام فتنوں میں سے اکثر کا تعلق اہل اسلام کے قبلہ نیاز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی محبت و عقیدت کو امتیوں کے دل و دماغ سے نکالنے سے ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک دماغوں سے اس نقطۂ نوری کو کھرچا نہ جائے، گمراہی کے اندھیرے راہ نہیں پا سکتے۔ کوئی غیرت مند مسلمان یہ جسارت کر سکتا ہے، نہ کسی بدلگام کی ایسی جسارت برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کہے یا لکھے جائیں جن میں گناہ کی نسبت معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو کہ آپ سے فلاں گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہوا، یا کم سے کم یہ کہ بعض ایسی باتیں معاذ اللہ آپ سے سرزد ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کے شایان نہ تھی وغیرہ۔ قرآن و سنت اور عقل و خرد کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صغیرہ اور نہ کبیرہ بلکہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے بھی کبھی کوئی گناہ، خطا، برائی سرزد ہوئی ہی نہیں۔ جو اس طرح کی بات کرے اس سے بڑھ کر جھوٹا اور مفتری کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں، ہر پہلو سے، ہر جگہ اور ہر زمان و مکان میں اخلاق و حسنہ کے بلند ترین مقام پر فائز رہے اور ہیں۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اسی عقیدے پر کار بند رہے، اس کے برعکس جو ہے وہ باطل ہے۔ آپ آڈیو میں سنیں گے کہ ایک تبلیغی کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ غلطی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہونے کے سبب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہونے کے سبب وحی روک دی گئی۔ یہ تبلیغ احباب کے بول ہیں۔ اس ٹولے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتوے میں جو خدشہ ظاہر کیا تھا وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ اندھ بھگت کیا بول رہا ہے کہ ہم سعد صاحب کے خلاف دارالعلوم دیوبند کیا کسی کے بھی فتوے کو نہیں مانتے۔ اب علماء کرام کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ یہ شورا امارت کا مسئلہ نہیں ہے، امت کے عقائد کا مسئلہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب سامنے صاف نظر آ رہا ہے۔ آپ آڈیو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم جی فیضان صاحب، یہ جماعت کا کیا معاملہ تھا جو ارن جا رہی تھی؟ جماعت کا کیا معاملہ تھا؟ کون جماعت جو ارن جا رہی تھی آپ لوگوں نے راستے سے ارن جا رہی تھی نا کوئی جماعت؟ ہاں ہاں، کون بول رہے ہیں آپ؟ عبدالحکیم بول رہا ہوں۔ عبدالحکیم کہاں سے؟ یہ ٹانڈا سے بول رہا ہوں۔ کوئی معاملہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا اس میں کوئی جماعت گجرات سے آئی تھی، ایسے ہی چل رہی تھی، ساتھیوں کو معلوم نہیں تھا کہ مطلب ایسے بغیر مشورے چل رہی ہے۔ وہ بغیر مشورے چل رہی تھی؟ ہاں، کسی ساتھیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن آپ کے امیر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مشورے سے چل رہی تھی۔ ہاں ہاں، بات تو سنیے پہلے، ساتھیوں کو یہی علم تھا کہ بغیر مشورے چل رہی ہے۔
तो फिर मशवरे साहब अमीर साहब ने ही तय किया, अमीर साहब की गलती थी, ऐसा नहीं है, उनको कहा भी गया, समझाया भी गया, और तो उनको मोहब्बत के साथ लाया गया, इसमें कोई बात ही नहीं है। जितना तो तुम पकड़ा रहे कोई बात को, इधर पूछ कर उधर पूछ कर। अरे तो भाई जब वहाँ पर आई होगी फैजान साहब तो किसी की मशवरे ही तो आई होगी, किसी के मशवरे से ही माना जाएगा। मरकज निजामुद्दीन के मशवरे से आए या तो क्या नाम हमारे जिले के मशवरे से आए, हमारे अच्छा, अगर मरकज निजामुद्दीन के मशवरे से नहीं आएगी तो आप चलने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। अगर मरकज निजामुद्दीन से जो अगर कोई देवबंद से आ रहा है, जमीयतुल उलमा का आ रहा है या कहीं और आता, बात नहीं करते? कोई आए, सुनिए, कहीं से कोई आए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इसका किसी को नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे आप? तो मरकज निजामुद्दीन के बारे में, वहाँ के अमीर के बारे में दारुल उलूम का फतवा है कि गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं। फतवा तो सब खत्म हो गया, फतवा तो अपने हमको मत सुनाइए ना, फतवा की बात करिए, ठीक है ना? फतवा खत्म हो गया? हाँ, हम उस फतवे को मानते हैं, ठीक है ना? अच्छा, फतवे को मानते भी नहीं? नहीं मानते हम, फतवे को नहीं मानते। बहुत अच्छी बात। तो कहा कि फतवे के मानोगे आप? देवबंद के फतवे के अगर नहीं मानोगे, एक मिनट मेरी बात सुन लो, देवबंद के फतवे के अगर नहीं मानोगे तो कौन सा इदारा है वहाँ के फतवे के आप मानोगे? हमारे पास जो इदारा है निजामुद्दीन इदारा, निजामुद्दीन से फतवा नहीं होता। निजामुद्दीन में फजाइल बयान होते हैं, मसाइल का फतवा भी पूछे हैं। किससे? तेरा नंबर बताओ, हम भी पूछ ले फतवा। हमको तो यही मालूम है मुफ्ती जहीर तो निजामुद्दीन में पढ़ाते नहीं। पढ़ाते हो या ना पढ़ाते, हमने उनसे कई बार फतवा अपना पूछा। मुफ्ती जहीर दीन एक अलग मुफ्ती है, हमने पूछा कोई एक मिनट मेरी बात सुन लो, हमारी बात सुनिए, सुनाइए। इसका समझा ना कहेंगे आपसे कि कोई भी काम करिए मशवरे करिए, 100 जमात भेजिए गुजरात। अरे भैया मशवरे से जमात चल रही थी। पहले सुनिए, बोलने से पहले सुनिए, आप 100 जमात भेजिए, ठीक है ना? हम 100 जमात लेने के लिए तैयार भी हैं, चलाने के लिए तैयार हैं। जैसे असाद भाई हमारे कोई जैन नहीं है, ठीक है ना? असाद भाई हमारे अपने हैं, उनके दरवाजे पे गया गया। भैया जब आप देवबंद के फतवे ही को नहीं मानोगे, पहले बात फिर आपकी बात आप कहाँ के फतवे को मानते हो? किस इदारे की? बात सुनिए किसकी, अब जो हम कह रहे हैं उसको सुनिए। निजामुद्दीन खिलाफ कोई फतवा देगा, सुन लीजिए इस तरीके से हमारी बात। निजामुद्दीन खिलाफ, मौलाना साहब खिलाफ पूरी दुनिया कोई फतवा देगा उसको हम नहीं मानेंगे, माशाल्लाह। चाहे वो देवबंद का ही आदमी क्यों ना हो, और चाहे कोई मुफ्ती आजम बनकर के आया कहे कि मौलाना साहब गलत है, तो इसको हम नहीं मानते। क्या मौलाना साहब नबी का दर्जा रखते हैं? क्या इनसे गलती नहीं हो सकती? नबी का दर्जा नहीं रखते, हमारे अमीर का दर्जा रखते हैं। नबी ही से गलती नहीं होगी, ये मासूम है। नबी से भी गलती हुई है। नबी से भी गलती हुई है? ये बिल्कुल हुई है, माशाअल्लाह। ये कितने महीना लगाने के बाद ये चीज हासिल होती है कि नबी से भी गलती होती है। नबी से गलती 15 दिन की वही बंद हो गई, कहा कि हम जो कल बता देंगे इंशाल्लाह, कहना भूल गए। नबी मासूम होते हैं, इसका कहने क्या मतलब हुआ? मासूम तो है, मासूम तो वही बात है। नहीं, गलती जब होती है तो मासूम कहाँ हुए? कहते हैं गुनाह होता है, गुनाह से अभी पाक होते हैं, नबी पाक होते हैं। नबी गुनाह से पाक होते हैं, नबी गुनाह से पाक होती है, गलती हो सकती है। तो अल्लाह की कंडरशिप नबी जो होते हैं, सूरे नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी जो कहते हैं मेरी तरफ से कहते। हाँ, तो गलती अल्लाह की भी हो गई आपके कहने को। फिर अल्लाह ने की याद दिलाने के लिए कुरान में इस बात का तस्करा किया कि आप 15 दिन क्यों भूल गए, और इस बात को क्यों अल्लाह ने लिखवाया इसको। तो इसमें किस मुफस्सिर ने कहा कि नबी से गलती हुई? जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए आपने। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा नबी से गलती हुई। इस जो आयत आप पेश कर रहे हो, किस मुफस्सिर ने कहा कि नबी से गलती हुई? हम तो यही जानते हैं, हम तो यही पढ़े हैं। हम कहाँ पढ़े हो? नहीं, यही पढ़े हैं कि मतलब नबी से गलती हो गई, उन्होंने ये कहाँ पढ़े हो? ये कहाँ पे पढ़े हो? पहले बात सुनिए, आप हमारी पढ़ाई को लेकर के या हमारी, अरे भैया ये चीज कहा आपने, कहा हमने पढ़ा है, अच्छी बात, बताओ ना यार, जब ऐसी बात हम नहीं, ये कहाँ से पढ़े हो कि नबी से गलती होती है? किताब पढ़े हैं। किताब में पढ़े हो? हाँ, फजाइल अमाल में वाक्य लिखा हुआ। फजाइल अमाल में कहाँ पे लिखा है? कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा होगा नहीं, कहाँ पे लिखा? पूरी फजाइल अमाल तो हमने 10 मरतबा पढ़ दिया, कहीं मिला नहीं हमको। नहीं मिला ना आपको? आइए दिखाएंगे आपको ना। नहीं तो फोटो पेज नंबर भेज दो। फोटो अब नंबर मोबाइल से बात नहीं करते, आइए हम डायरेक्ट बात करेंगे। अरे भाई जब आप कहते हो कि मौलाना साहब के खिलाफ कोई फतवा कहीं से देगा, हम नहीं मानेंगे जी। और दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया के एतबार से आप फतवा लगाने फिर रहे हो? हम नहीं फिरे हैं। नहीं, तुम सही गलत फतवा लगाओगे सबके ऊपर? हम नहीं लगाते हैं, दारुल उलूम देवबंद लगाया है। नहीं, तुम हमारी बात सुनो, जो तुम सुनाए हो कि हम क्या नाम है इस तरीके से सुनाएंगे हैं और इस तरीके से देवबंद का फतवा बताएंगे, तो हमें फतवा निकाल हो।
हम नहीं हम तो निकालते मोहब्बत से बात कर रहे हैं तुमसे। हम अब तो नहीं हमको फतवा निकालते नहीं, हैं। फतवा हमारी ये कहीं वो नहीं लोग सुनो निकालोगे। सुनो सुनो तुम उम्मत का- तुम ये जानकारी लोगे। उलमा का काम है। सुनो मेरी बात सुनो, आज के बाद कोई जमात भेजोगे हाँ। मशवरे नहीं आएगी, नहीं चलने देंगे। सुन लो, साफ बात वाज़ेह सुन लो, ठीक है ना? नहीं चलने जो दोगे? बात नहीं चलने देंगे, तुम्हारी औकात हो गया कि रोक लेना। अच्छा, अच्छी बात है।